0 mass and -1 charge. Now we saw this also that beta is a fast moving electron. Then how come it is present inside the nucleus? Anybody would like to answer this? न्यूक्लियस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज में ब्रेक होता है. नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड सॉरी होता है. न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में break होता है. there's a difference between nucleus and yes, neutron yes, ना बेटा. yes, I know yes. मुझे पता है आपको आंसर आता था. निकिता ने बोला शायद आंसर, राइट? Yes. हाँ, तो what is a neutron made up of? A neutron, Proton and electron. Proton and electron. proton and electron. So when it breaks into a proton and electron is thrown outside the nucleus. A electron is thrown outside the nucleus and proton stays inside. Okay. So when beta is emitted, mass does not change, but charge increases by 1. है ना? Yes. Yes. Atomic number increases. Atomic number. So when I say atomic number, I am referring to the number of protons, right? Protons. Because neutron has broken down into a proton and electron. Electron को उसने बाहर भगा दिया और proton अंदर ही है, ऐसा. ये वाला ये लिख लिया था तुम लोग ने, ये gamma ray. Yes sir. Yes. Yes, sir. ये भी लिख लो. ये लिखा था. Yes. अच्छा, we discussed something called as transmutation, right? Yes. What is transmutation? Can someone tell me? Changing of atom into another type of Atom atom. into another atom. Very good. Transformation of one nucleus into other type of nucleus. On a whole, if I can say like this also. Transformation of an atom into other type of atom by the loss of alpha beta particles, right? Yes. But when gamma rays is released, it is not क्या बोलते हैं, it is not transmutation. Why is it not transmutation? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होता है. हाँ, क्योंकि ना तो मास चेंज हो रहा है, ना ही प्रोटॉन नंबर चेंज हो रहा है. The only thing which is changing is the energy level. The atom is becoming more stable by the release of gamma rays. Gamma is a ray, alpha beta are particles. सर गामा में वो वही एलिमेंट रहेगा तो ना फाइनल में. क्या बोल रहा है बेटा? रिएक्शन लिखते ना तो गामा में वही एलिमेंट रहेगा ना. Yes. I'm sorry. Yes. Reaction जब भी लिखेंगे ना, तभी लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट रहेगा ना, उसके ऊपर अपन एक स्टार मार्क करेंगे. जैसे वो एस्ट्रिक्स रहता है ना, ऐसा मार्क करेंगे. That asterisk is showing that it has excess of energy. और जब गामा रेडिएशन उसमें से निकल जाएगा, तब हम लोग सिर्फ वो एलिमेंट का सिंबल वहां पे लिखेंगे. एस्ट्रिक मार्क्स नहीं यूज करेंगे. Showing that the energy has been eliminated. Yes. Okay. Yes. Okay. Write a nuclear equation for the beta decay of xenon 152. Okay. One thing I want to say is, आप लोग को यहाँ पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों दिया जाएगा, ठीक है? दोनों दिया जाएगा, तो डू नॉट वरी कि इसने यहाँ पे दिया नहीं है. दिस इज जस्ट सम वीडियो फ्रॉम द यूट्यूब which I am using. Okay. So can someone tell me, यहाँ पे से अगर एक बीटा पार्टिकल निकला तो फाइनल एलिमेंट मिलेगा. I don't want you to name the final element. वो तो 150 to 55. Very good. Mass number is going to be 152 and the atomic number is going to change to 55. 55. अभी निकलता है तब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कहाँ पे शिफ्ट होता है? लेफ्ट की राइट साइड. Are you sure? सर किस में? बीटा में ना. अल्फा में लेफ्ट साइड आता है. अल्फा में लेफ्ट. बीटा में राइट साइड. अल्फा में दो लेफ्ट साइड होता है और बीटा में एक राइट साइड. एक राइट साइड. यस. तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दो लेफ्ट और एक राइट. यस. बीटा निकलेगा
तो कौन सा एलिमेंट मेरे को मिलेगा, उस एलिमेंट के राइट साइड में जो रखा हुआ है सबसे पहला एलिमेंट वो। और अगर अल्फा निकलेगा तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा, उस एलिमेंट के दो लेफ्ट में जो एलिमेंट रखा हुआ है वो। ठीक है? यस अच्छा सर दो लेफ्ट में बोलो बेटा। दो लेफ्ट नहीं समझा। दो लेफ्ट नहीं समझा। जब भी अल्फा निकलता है एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, राइट? अल्फा Yes, yes. निकलेगा तो +2 चार्ज कम हो जाएगा ना बेटा, निकल जाएगा ना उसके साथ। यस तो 2 निकल जाएगा। Yes. अगर एटॉमिक नंबर 2 से कम हो रहा है तो पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन भी शिफ्ट होगा ना। यस When it is reducing, it is moving to the left. When it is increasing, it is moving to the right. It is Yes, increasing yes. by 1, so it moves by 1 right. It is reducing by 2, so it is moving 2 left. दो प्लेसेस से लेफ्ट मूव होता है, ये है शुभम। समझे बच्चे? यस यस अच्छा so this is going to be 55. ठीक है, मास क्या होगा 152। ये कौन सा एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल है किसी के पास? cesium. cesium. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। राइट न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द अल्फा डीके ऑफ xenon 152। सेम के अंदर अभी मैं पूरा अल्फा पीरियडिक डीके, टेबल लर्न कर। क्या बोल रहे हो बेटा? पीरियडिक टेबल अगर कैसे पता चलेगा नहीं कि नहीं वो नहीं, आया है? पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं करना है, ये आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, डोंट वरी। आपको ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं कौन सा एलिमेंट आया, आपको दिया रहेगा XY के टर्म्स में दिया रहेगा। इसके साथ ना थोड़े ना इंटरेस्टिंग सम्स भी है, मतलब आपको दिया रहेगा कि मास पहले क्या है बाद में क्या है, आपको ढूंढना है कितना अल्फा और कितना बीटा निकला, फिर आपको बताएंगे इतना अल्फा और इतना बीटा निकला, कितना मास और कितना ये रहेगा। ठीक है? वैसे समझना मैं बोर्ड पे कराऊंगा आपको। अभी कैसा है, अभी मैं आई एम नॉट हैविंग द स्ट्रेंथ टू स्टैंड एंड टीच, आई एम स्लीपिंग राइट नाउ एंड टीचिंग यू। ठीक है? अभी ये सम आपके सामने है, इसके अंदर अगर अल्फा निकला, अगर अल्फा डीके हुआ तो मास और एटॉमिक नंबर में क्या फर्क होगा और क्या एलिमेंट मिलेगा, प्लीज अपने अपने बुक्स में कंप्लीट करो, सब लोग करो, डोंट टेल मी, डू इट, आई विल आस्क एनीवन। Done. डन बेटा? Yes. अच्छा होल्ड ऑन। अदर्स लिख लिया? यस सर Yes. ओके क्या ये आता है, मास नंबर क्या होगा इसका? 148. 148 148। क्यों 152 से क्या किया आप लोग ने? 4 Minus minus four. माइनस किया। और ये क्या होगा एटॉमिक नंबर? 52. टेलिडियम वेरी गुड। ये कौन सा एलिमेंट है देखा क्या? Tellurium. टेलिडियम टेलुरियम है। अच्छा ओके क्या हो गया? अच्छा टेलुरियम, वेरी गुड। चलो अच्छा, have you heard of something called as ये other type of nuclear emissions ना हम लोग CET एंट्रेंस के टाइम पे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अच्छा I'm asking, have you ever heard of fission and fusion? ये वर्ड सुना है कभी बेटा? यस सर Yes. अच्छा, in what context have you heard this word? सर फ्यूजन सन में होता है। फ्यूजन सेल में होता है। अच्छा एक मिनट, फ्यूजन सेल में होता है और फिजन का होता है। अच्छा फॉरगेट अबाउट होता है, फॉरगेट अबाउट कहाँ होता है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो कहाँ हो रहा है, मुझे जानना है फिजन। फॉरगेट अबाउट न्यूक्लियर आल्सो, टेल मी द मीनिंग ऑफ फिजन एंड फ्यूजन इफ यू नो, नो कंपल्सन। एनीबॉडी?
सर Little meaning. I'm फ्यूजन asking दो for the, न्यूक्लियर जब I'm asking for the little कोलाइड meaning. करते हैं ना, फ्यूजन जब दो न्यूक्लियर कोलाइड करते, Sir, न्यूक्लियस कोलाइड करते हैं combination ना, होता तो है two or फ्यूजन more, होता है, और fission जो होता है वो breaking down होता है. Okay, ब्रेक okay. होता है One at a फ्यूजन. time. One at a time. One at a time. हाँ. Fission Fission means splits to होता break down Yes. into और smaller fusion particles. combine होता है. Fusion फ्यूजन means to मतलब कंबाइन combine होता है. and form one big Combine particle. होता है. यस, Simple Yes. language में. Fission means one big particle breaking into smaller particles, and fusion means one Combination. smaller particles combining to give you one big particle, right? सबको समझा मैंने क्या बोला? यस, Yes. अभी किसी ने मुझे बोला था कि सन के ऊपर फ्यूजन हो रहा है. सन के ऊपर फिजन और फ्यूजन दोनों होता है बेटा, दोनों होता है. कंटिन्यूअसली. ठीक है. सन के ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम का, आइसोटोप्स का Yes. कंटिन्यूअस फ्यूजन और फ्यूजन हो रहा है. ऐसा. ठीक है. सो अपना that is what on a larger scale fusion. Is it? I'm sorry guys, I am just not in a very good health today, so I'm breaking in between. See, this is nuclear fission. अगर लोग उसको पोर्ट्रे करें तो आपने देखा वो एक बड़ा एटम था which broke into, वो टूट गया. ठीक है. बाजू में क्या दिया है वो? न्यूक्लियर पावर Very प्लांट. good, very good. That is a nuclear power plant. Nuclear power plant. हाँ, that is a nuclear power plant. तो nuclear fission का concept ना we are using in nuclear power plants. What are we using nuclear power plants for? जनरेटिंग एनर्जी. Electricity. Energy. Electricity. Energy can be of any form बेटा. ठीक है. यस, Yes. Yes. Okay. Before looking at that, let us look at nuclear fusion. देखो, this is fusion. Did you see what happened? I'll repeat it for you. यस, ये fission है बेटा. देखो, this breaking. One entire nucleus broke into smaller particles. This is fission. Okay. अब देखना fusion. Fusion is opposite. Two different atoms are coming. Two different nuclei are there. What is Yes. happening? They are combining to form one big nucleus, one big atom. Okay. सर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस कंबाइन कैसे हो गया? रिपल्शन होते हैं उन लोग के बीच. न्यूक्लियस और न्यूक्लियस कंबाइन कैसे होंगे? द थिंग इज कि इसके अंदर ना बच्चे क्या होता है ना, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ना द थिंग इज कि ये जो कंबाइन होता है ना न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, इसकी वजह से ही इतना ज्यादा एनर्जी निकलता है. ये जो आप बोले ना रिपल्शन होगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. Yes. ठीक है. दैट रिपल्शन वी आर फोर्सिंग इट टू हैपन. ठीक है. तो वो रिपल्शन का एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू दिस एनर्जी व्हिच वी आर यूटिलाइजिंग. ठीक है. इसीलिए इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है. सेकंड थिंग, फिजन इज इजी. One atom, breaking one atom into smaller atoms or nuclei is easy, but combining two nuclei together is very difficult. Okay, as you said, इसमें बहुत सारा challenges रहेगा. इसमें repulsion होगा, energy बहुत ज़्यादा लगेगा. इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा high heat content लगता है, बहुत ज़्यादा high energy लगता है. Fusion करने के लिए, fusion करने के लिए भी energy लगता है, और fusion से जो energy बनता है वो भी बहुत high रहता है. आप देखेंगे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ना फ्यूजन नहीं होता है, फिजन होता है. क्यों? बिकॉज प्रैक्टिकली अर्थ पे फ्यूजन करना इज नॉट पॉसिबल. फ्यूजन इज हैपनिंग एट द सन्स कोर. वो नेचुरल फिनोमिनन वहां पे हो रहा है बिकॉज वहां पे उतना एनर्जी, उतना हीट है. Yes. एक्सेस हीट प्रोड्यूस करना फीजिबल होता है क्या अर्थ पे? No. नहीं. No. ओके, दैट इज व्हाई फिजन इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर फ्यूजन. Okay, so the best example of fusion is आपके सामने the sun, the energy which we are getting from the sun. Now you can imagine what tremendous amount of energy we are getting. मतलब sun अपने से कितना दूर है ना बेटा, 4-5 किलोमीटर दूर है, और वहां से इतना हीट आ रहा है. सोचो. So what is happening in nuclear fission and nuclear fusion? So this is you.
What is this? ऑर्बिटल एटम Simple. This is an atom. This is an atom. बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एटॉमिक न्यूक्लियस से अपने को लेना देना है, ठीक है? Now what's happening is this nuclei is containing of neutrons and protons. अब इसमें से आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोटॉन है और कौन सा न्यूट्रॉन है? प्रोटॉन पॉजिटिवली प्रोटॉन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है. I really love the excitement you are showing in the morning, but to be very honest, I was not able to process whatever you guys said in group. So can any one person speak? सर प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव है, positive. न्यूट्रॉन न्यूट्रल है. वेरी गुड. तो आपको पता कैसे चला तेजस यहाँ पे प्रोटॉन कौन सा है और न्यूट्रॉन कौन सा है? देख के सर कैसे पता प्रोटॉन चला? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक को फील्ड. अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट अरे करेगा. मेरी जान, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ देख करके आपको कैसे पता चल सर रहा है? उसके ऊपर सर उसमें चार्ज प्लस रहता है प्लस लिखा है उसके और ऊपर. उसके ऊपर हाँ. चार्ज नहीं लिखा Okay. है. So तेजस, your answers are always awesome. ठीक है? तेजस and अपना शुभम and ये अपना Nikita and Sharon and oh God, I'm so sorry. I can only remember these 4 names. I have many other people also in this class who speak very nicely. अपना पीयूष and all. ठीक है? Your answers are really good. But one thing I want to tell you बेटा is कभी कभी ना आंसर्स बहुत सिंपल होता है बच्चे, अपने को ना उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करने का. तुमने जो आंसर दिया एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम बरोबर बोला है. बट अपने को, मैंने क्या पूछा आपको कि इसको देख के कैसे पता चलेगा? सिंपल आंसर है, प्लस एंड न्यूट्रल, सिंपल एज दैट. ठीक है बच्चे? आई रियली लव द वे Yes. यू थिंक, ऑल ऑफ यू, नॉट ओनली तेजस, एवरी वन ऑफ यू. आप लोग बहुत अच्छे से सोचते हो, अच्छे से आंसर देते हो, बट समटाइम्स वी शुड ऑलवेज थिंक बेसिक. ओके, एंड दिस इज द की टू क्रैक योर एंट्रेंस एग्जाम्स. एंट्रेंस एग्जाम आपको लगता है डिफिकल्ट है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे ना वी फॉरगेट द बेसिक्स एंड वी ओनली थिंक कि सब बड़ा बड़ा क्वेश्चंस ही आएगा और वहीं पे अपन मार खा जाते हैं. ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखना बच्चों. ये देखो, protons are positively charged and neutrons are neutral. Simple. Now atomic nucleus as a whole is positively charged Yes. Yes. because उसके अंदर नेट चार्ज क्या है? Protons. प्रोटॉन का है. यस. अच्छा, इसके आसपास क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. दिस इज हाउ एक्चुअली अ एटम लुक्स. वो लाइन अपन जो बनाते हैं ना ऑर्बिट्स का, वो दिखता नहीं है, वो अपन ने सिर्फ ट्रेस करके बनाया हुआ है. एक्चुअली अगर एटम दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, वो इलेक्ट्रॉन जैसा हवा में घूमते दिखेंगे. इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे. हाँ, वेरी cloud गुड. जैसे. इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं इसको. यस, करेक्ट शुभम. ओके, दे आर नेगेटिवली चार्ज. नाउ न्यूक्लियर फिजन देखते हैं क्या होता है. अब ये देखो कितना न्यूक्लियस है इसका, मतलब ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लिया है इसने, इतना ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखाया है उसके अंदर. इट इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है बेटा? तुमको इस डायग्राम में क्या गलत लग रहा है मुझे बताया कोई? एनीवन? इस डायग्राम में गलत क्या लग रहा है मुझे बताया कोई? ऑर्बिटल गलत है. नहीं, फॉरगेट अबाउट ऑर्बिटल. कुछ बेसिक चीज देख के गलत लगता है. इलेक्ट्रॉन्स कम है. वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड. इलेक्ट्रॉन कौन बोला ये? साहिल. साहिल अवध. नो, वड़ंजू. Sahil Vadanjule. Very good, beta. Sahil, you are absolutely right. What we have learned in an atom, the number of protons and the number of electrons is same. अभी ये हमको क्या बोल रहा है कि ये एटम है. अभी ये अगर एटम है तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन दिखना चाहिए, पर इसने तो भर मार एकदम मार के दिया एकदम बहुत सारा. ले ले सर ले. पीछे होगा इलेक्ट्रॉन. यस. अरे नहीं होगा पीछे. ठीक है? आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ठीक है? यस. यस. ये देखो, अब ये हम लोग फिजन सीख रहे हैं बेटा. फिजन कैसे होता है? ये मेरे पास न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस है. ये हवा में क्या उड़ रहा है, कोई बता सकता है? वो इलेक्ट्रॉन नहीं है. प्रोटॉन से. न्यूट्रॉन है. वेरी गुड, वेरी गुड. ये न्यूट्रॉन है. रिमेंबर पावर प्लांट का वर्किंग, न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन द न्यूक्लियस टू स्प्लिट इट इनटू Uranium स्मॉलर. 238. Yes. वेरी गुड. वेरी, ये 10th में सीखा था क्या आप लोग ने? Yes. यस. Yes. अच्छा, ठीक है. ये जो हवा में उड़ रहा है ना बेटा, ये अपन बाहर से बॉम्बार्ड कर रहे हैं और वो क्या है? न्यूट्रॉन है. ठीक है?
वो न्यूट्रॉन को Neutron. अपन बिना डिफ्लेक्ट, न्यूट्रॉन्स को अपन बिना डिफ्लेक्ट करे हुए ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एम कर सकते हैं। क्यों बेटा ऐसा? चार्जलेस है वो वो। चार्ज ही नहीं है। Chargeless. वेरी गुड, Electron. इट इज चार्जलेस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मैंने अगर एम किया किसी की तरफ और बीच में कहीं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आया तो वो पलटी देगा अपने को, ठीक है, Yes. वो मुड़ जाएगा। मम्मी क्या हो रहा है? Are you observing? I am pausing in between for you to see. ठीक है, अभी क्या हो रहा है? यहाँ देखो वो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, वो क्या हो रहा है? वो न्यूट्रॉन आकर के इसके न्यूक्लियस को तोड़। Did you see? पर एक न्यूट्रॉन से ही हो जाता है। हाँ बेटा, सर उसके साथ और भी न्यूट्रॉन और एनर्जी भी निकल सकता है ना? और आएंगे अपन। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, बेसिक फिजन क्या होता है वो देख लो, फिर उसके अलग अलग टाइप होता है, अपन डिस्कवर करते रहेंगे, ठीक है ना? पहले बेसिक फिजन होता क्या है वो समझ लो, ठीक है? ये देखो न्यूट्रॉन आया, अब ये न्यूट्रॉन आकर के न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करेगा, ये न्यूक्लियस से टकराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा। तुमको पता है एटॉमिक बॉम्ब्स में भी यही टेक्निक यूज होती है। Yes. यस, एटॉमिक बॉम्ब्स अच्छे रहते हैं, बुरे रहते हैं? बुरे रहते हैं। बुरे रहते हैं। पूरा रहता है। क्यों बुरा रहता है बेटा? पर कभी कभी अच्छा न्यूक्लियस रहता है। फटते हैं उसके अंदर। कभी कभी अच्छा रहता है बोलती है शायद। humanity. क्यों बच्चे, कभी कभी अच्छा क्यों रहता है? सर अगर हम लोग के ऊपर हमला किया तो हम लोग जल्दी में। अच्छा, you understand, right? Nuclear bombs are not to be operated at a household level, they are to be operated at a country level, right? Yes. यस, तो बेटा लैब में कभी न्यूट्रॉन बॉम्ब बना करके ऐसे एक दूसरे के ऊपर डालना मत प्लीज। पर तुम कर भी नहीं सकते बिकॉज तुम लोग कभी लैब गए ही नहीं। Yes. अब देखना क्या होगा, ये क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन आके बॉम्बार्ड होगा, उसके बाद एक्सप्लोजन होकर क्या होगा? मेरे को दो न्यूक्लियाई मिल जाएगा अलग अलग। सबको समझा न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? Yes. एक Yes. एटम, उसको मैंने बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन से, और वो न्यूट्रॉन का इम्पैक्ट की वजह से ब्लास्ट होकर के दो ये बना, स्प्लिट इनटू टू न्यू न्यूक्लियर। Yes. of them part of the यूरेनियम electrons. 235 आइसोटोप में कन्वर्ट होकर ट्रिप्टोन और बेरियम में बदल Yes बेटा, और each of these atoms it takes certain amount of electrons equivalent to the number of protons इसके न्यूक्लियस में, ठीक है? Yes. ये देखो न्यूट्रॉन, अभी क्या होता है, कुछ बड़े एटम्स होते हैं, बहुत बड़े एटम्स, ठीक है, लाइक यूरेनियम एंड ऑल, उसको मैंने न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया और दो नया न्यूक्लियर बनाया। अब ये न्यूक्लियस इतना बड़ा था कि इसके अंदर एक्सेस न्यूट्रॉन्स भी था, तो ये बॉम्बार्डमेंट के बाद क्या हुआ, कुछ फ्री न्यूट्रॉन्स भी बन गए। अब ये फ्री न्यूट्रॉन्स बढ़ गए तो ये क्या होगा, अभी वहां पे एक ही बेरियम का एटम तो नहीं रहेगा, और बहुत सारे रहेंगे, राइट? तो ये Yes. फ्री न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, ये दूसरों को जाके भिड़ेंगे, फिर वो फटेंगे, फिर उसमें से फ्री न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर वो दूसरे को भिड़ेंगे, ऐसा होते होते क्या हो जाएगा? What is the word? Very good. चेन रिएक्शन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? चेन रिएक्शन बनेगा, है ना? ये चेन रिएक्शन हो जाएगा। Now, is it necessary to control it or we can allow it to happen? कंट्रोल कर सकते। Control कर सकते हैं, I know, but is it necessary to control? If not control, what is going to happen अगर control नहीं किया तो? बर्स्ट हो जाएगा। चालू भी रहेगा ये, रेडियोएक्टिव हो बहुत जाएगा। एक्सेस एनर्जी आएगा। इतना ज्यादा, Yes. सॉरी, इतना ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा कि वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये आप लोग कोई भी नेटफ्लिक्स या फिर Amazon वगैरह देखा है? चेर्नोबिल एक, यस सर, देखा है चेर्नोबिल। it Yes, is sir, absolutely Chernobyl on this concept. चेर्नोबिल इज इन रशिया, और वहां पे ना, ये मैंने मेरे स्कूल में पढ़ा था, और अभी इसके ऊपर सीरीज भी बना हुआ यूक्रेन है। में सर, यस, यूक्रेन में अभी, अच्छा, यूक्रेन में है अभी, कोई बात नहीं, उस टाइम पे रशिया में था यूक्रेन में वो, जब मैं बच्चा था बेटा, उसकी बात। तो वहां पे क्या हुआ था ना, वहां पे जो बंदा उसको ऑपरेट कर रहा था वो रात को सो गया था, जिसकी वजह से ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होने के कारण चेर्नोबिल का न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था। ये बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर फटता है तो बहुत कम नुकसान होता है क्या? बहुत ज्यादा। ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अंदर से रेडिएशन जो निकलते हैं वो जनरेशन को हार्म करते हैं। हाँ, वो आपके डीएनए को अल्टर कर सकते हैं, ठीक है? You know the concept, Yes, you know the chemical phenomenon bomb of Hiroshima and हिरोशिमा Nagasaki. नागासाकी, यस। हिरोशिमा Yes, नागासाकी sir. के इंसिडेंट्स कौन से वॉर में हुए थे? वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर
वाह वाह, congratulations बेटा, पद्म भूषण to you. I know it is World War. I'm asking one or two. सर 1945 में अमेरिका में I'm हुआ था asking क्या? World War One और World War Two. second Second World World War में हुआ था. किसने किसके ऊपर डाला था बेटा? अमेरिका अमेरिका ने अमेरिका ने जापान पे अमेरिका ने जापान पे डाला था. अमेरिका ने जापान पे क्यों डाला था वो किसी को पता है? ट्राई करने के लिए, बॉम्ब Nonsense. टेस्ट कर। ऐसे सर, थोड़ी पहले ट्राई जापान करने ने के लिए डाला cities था। उड़ाया. अमेरिका पहले पहले जापान ने डाला पहले था। जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था. हाँ, तो अमेरिका ने स्मॉल बॉय और फैट मैन दो नाम के मिसाइल डाले जापान के हिरोशिमा नागासाकी। Look at my Tejas darling, he's so intelligent, very good बेटा. You should be aware of such क्या बोलते हैं incidents. और ये हिरोशिमा और नागासाकी इंसिडेंट्स के बाद ना जापान इतना डिवास्टेट हो गया कि उसने पीस ट्रीटी साइन किया. उसने बोला कि भाई ये नुकसान मेरे से देखा नहीं जाता है. आज तक वहाँ के लोग डिफेक्टिव पीस पैदा होते हैं, पता है आपको? यस यस, आ जाओ, एग्जाम्पल यूरेनियम का एग्जाम्पल है, ठीक है? यूरेनियम स्प्लिट्स इनटू दीस थ्री. ये देखो, इस तरीके से न्यूक्लियर फिशन होता है. एनर्जी इज रिलीज जिसको वी कैन यूज फॉर लाइटिंग अप बल्ब्स एंड ऑल. नाउ लुक एट दिस बेटा. From 1 kg of uranium, you can produce as much energy as you can produce from 12,000 liters of mineral oil. Is this huge? यस It is very huge. So isn't it good? Because mineral oil तो ये है क्या बोलते हैं non renewable है, right? यस यस, अच्छा, so this is good ना. अगर मैं 1 किलो यूरेनियम यूज करूं instead of 12,000 liters of mineral oil to produce energy, world will be such a better place. But इसके सर अपने रेडियोएक्टिव वेस्ट भी very good. निकलेगा. Yes. इसके अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं. Although 1 kg यूरेनियम में उतना एनर्जी मिल जाता है, बट इतना हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसको डिस्पोज करना आसान नहीं है. ओके बच्चे? So if anything has a boon, it has a bane also. I hope everybody understand what is the meaning of boon and bane. यस हम लोग ने यस, यस सर. कॉम्पोजिशंस किए होंगे सर ना? जिसका यस सर जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज. यस, ठीक है. तो ये सब जनरल नॉलेज के लिए लिखो. अगर ये सब आप ऐड करोगे ना अपने पेपर्स में, अपने आंसर्स में, इट गिव्स अ डिफरेंट लेवल टू योर आंसर्स. ये जो 1 kg uranium will give you energy from 12,000 liters of mineral oil, also 19,000 kilogram of hard coal. कोल भी अपना नॉन रिन्यूएबल है, तो 19,000 kg कोल यूज करने से 1 किलो यूरेनियम यूज करना बेटर है फॉर एनर्जी. बट प्रॉब्लम इज उतना नुकसान 19,000 किलो कोल नहीं करेगा जितना ये 1 किलो यूरेनियम का वेस्ट कर देगा. मतलब ऐसा नहीं कि उसको यूज नहीं करना है, उसको यूज करना है, बट उसके डिस्पोजल के तरीके बहुत ज्यादा इससे रहना पड़ता है. आपको पता है पीपल हु आर ऑपरेटिंग ओवर देयर दे वेयर अ प्रॉपर लेडेड क्लोथ्स. वो लेड के क्लोथ्स पहन के जाते हैं. क्यों? Yes. बिकॉज़ लेड हैज द पावर ऑफ एब्सॉर्बिंग रेडियोएक्टिव रेज. आपको पता है? यस इसके ना बहुत सारे मेडिकल ये भी हैं एप्लीकेशंस. तो सोनोग्राफी, एंजियोग्राफी, ऐसी बहुत सारी ये होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें ना योर बॉडी इज क्या बोलते हैं, इट इज एक्सपोज्ड टू दीस रेडिएशंस फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. So the doctors which are there inside that room, na, they wear special coats which are having lead on them. Why? Because वो radiation उनके बॉडी में जाना नहीं चाहिए. तुम लोग ने सुना है ये? यस, अच्छा, अरे भगवान रे. अभी द क्वेश्चन इज ये एनर्जी आ कहां से रहा है और इतना ज्यादा क्यों है ये? न्यूक्लियस के अलावा मेरे न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स. नाउ these charges are repelling each other, positive charges. Okay, you remember guys, मैंने आप लोगों को बताया था न्यूक्लियस के अंदर there is interaction between proton neutron and neutron. यस प्रोटॉन के अंदर रिपल्शन इंटरेक्शन ज्यादा है. यस ठीक है. यस. अब ये जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, these interactions are very strong. And now when a bombardment is happening, you are breaking these interactions.
these interactions are happening because of something called as binding energy. Yes, Yes. binding energy. Yes. बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. Yes. Yes. हमने Yes. न्यूमेरिकल्स भी करे हैं बाइंडिंग एनर्जी पे. Yes. तो Yes. ये बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होता है ना, हे भगवान. These are the strongest forces. Nuclear force or strong Yes, nuclear strong. force. They are very strong. It is a very strong rubber band. It's like it's a very strong rubber band which is holding certain particles together. अब बेटा अचानक से मैं कैंची ला करके ये रबर बैंड को काट देगा तो वो रबर बैंड क्या करेगा? वो स्प्लिट हो जाएगा दो वेरी में। गुड. वो क्या होगा? जिस चीज को उसने बांध के रखा वो सब इधर उधर फैल जाएगा, राइट? हट जाएगा. Yes. तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट समझ के रखो. एक रबर बैंड ने ना इन सबको बहुत टाइटली बांध के रखा हुआ है. जब न्यूट्रॉन उस रबर बैंड पे गिरता है वो रबर बैंड टूट जाता है और ये दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं विद द रिलीज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. Yes. ये देखो, ओ माय गॉड, रबर बैंड टूट गया और वो एनर्जी जो रिलीज हुआ उसको मैंने यूज किया बल्ब जलाने के लिए. बिजली. Yes. इतना एनर्जी ऑयल या फिर कोल से नहीं निकलता है. या ओके. मुझे बताओ फ्यूजन समझ में आया सब लोग को? Yes. Yes. Anybody has any doubt? Fission में क्या हो रहा है? Fission में क्या हो रहा है बेटा? Neutron is coming, bombarded on the nucleus. It is breaking the one nucleus into smaller nuclei with the release of excess amount of energy. Okay. Yes. Yes. मेरी एक Yes. नाक बंद है. Nuclear fusion. Nuclear fusion is total opposite to nuclear fission. Fission में one nucleus was breaking into two nuclei. यहाँ पे more nuclei are combining to form. Combining. मम्मी ये देखो हाइड्रोजन. देखो what am I trying to do? I am trying to combine two hydrogen atoms into one. Okay. I am trying to combine two hydrogen atoms into one. When I am trying to do this, उसके न्यूक्लियस को मैं एक दूसरे के पास लाना चाहूंगा, right? Yes. 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 So as Sharon said, यहाँ पे क्या होगा बेटा Sharon? Repulsion. Excellent. क्यों? Because both are having positively charged Positive proton each. ठीक है? Equal charges में ये देखो कैसे वाइब्रेट कर रहा है वो. तुम लोग ने कभी बचपन में ऐसा किया है? मैग्नेट के सेम पोल्स को अभी आपस में स्टिक करने की Yes. कोशिश किया है? Yes. आपने देखा है कैसे वो तड़पता है दूर जाने के लिए? Yes. Yes. एग्जैक्टली Yes. सेम चीज यहाँ पे हो रही है अभी. ठीक है, मैं दो लाइक चीजों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं और वो तड़प रहा है दूर जाने के लिए, बट एक्सटर्नल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो उसको तोड़ नहीं पा रहा है. ठीक है. Yes. Now these are Coulomb forces. What are Coulomb forces? Coulomb is the unit of charge, right? So what is the charge on a proton? It is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb plus 1.6. What is the charge on electron? It is minus 1.6 Minus into 10 to the power minus 19 coulomb. 19 coulomb. Right? ये पता है हम लोग को. So Yes. this force of attraction between proton, electron and electron is called as the Coulomb force. अभी देखो, ठीक है. अभी ये क्या कर रहा है हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है? वो दूसरे प्रोटॉन को अपनी तरफ आने देना नहीं चाहता है. इट इज लाइक उसने अपने आजू बाजू में एक फेंस बना के रखा हुआ है. ठीक है, फेंस समझते हो बेटा? Yes. क्या होता है Yes. फेंस? और गार्डन में लगा. Protection रहता है. अरे भगवान, फेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे भगवान, किसी को नहीं पता. वारे मेरे देश की जनता. What is a fence called in Hindi? Nobody? I'm so sad. My students do not know Hindi. What is it called in Marathi? अपनी मातृभाषा में बात सर करो तो बाढ़ बोलते हैं. कुछ खराब नहीं हो जाएगा बेटा. बाढ़ बोलते हैं. बाढ़ बोलते हैं. बाढ़ तो बेटा उसको बोलते हैं ना जो पानी की वजह से आती है. चलो छोड़ो, कोई बात नहीं. और नहीं होमवर्क सर, फॉर टुडे वैसे इज भी फाइंड बाढ़ आउट भी- बॉर्डर बोलते हैं. बॉर्डर.
वो इंग्लिश है नालायक. Now see this. I have one hydrogen atom. I have another hydrogen atom. किसी ने मैसेज किया है? क्या मैसेज किया है? Kompan in my. Anna is saying Kompan. Okay, thank you so much बच्चे. Okay. अब देखो, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है. अब now these fences are pulled down once they are forced together. See, like this. So strong interaction is happening. Like this. अभी जो सामने आपके हुआ, मैं जबरदस्ती दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन किया, ठीक है. वो उन्होंने बहुत हद तक एक दूसरे को रिपेल किया, बट जब पॉसिबल ही नहीं हुआ तो वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो गए और एक एटम बन गया. पर ऐसा होने में क्या क्या निकला बेटा? एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला. उसको स्टेबल होने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए रहेगा, ठीक है मम्मी? ओके. Yes. Yes. सर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए लाइटर एलिमेंट्स जरूरी होगा. लाइटर एलिमेंट्स, ये लाइटर एलिमेंट्स के साथ ही होगा ना बेटा. दो बड़े एलिमेंट्स को तो फ्यूज करने का आप सोच भी नहीं सकते. पूछो क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो इतना repulsion प्रोटॉन, रहेगा. इतना Higher प्रोटॉन repulsion. एग्जैक्टली. उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप उसको कर ही नहीं पाओगे. इसीलिए सन के जो कोर में है वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम का ही फ्यूजन हो रहा है. हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द लाइटेस्ट एलिमेंट्स ना, एटॉमिक नंबर 1 and 2. Yes. Yes. एक दूसरे के आइसोटोप्स बनाते रहते हैं, एनर्जी रिलीज करते रहते हैं. 4 हाइड्रोजन एटम्स. सर हाइड्रोजन बॉम्ब भी न्यूक्लियर फ्यूजन से बना जाता है. क्या बोल रहे बेटा? क्या बोल रहे शुभम? बोलो. हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन. नहीं, that is a different concept altogether. Hydrogen bond is something totally different बेटा, ठीक है. वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हाइड्रोजन, मिनिमम एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए. ये सर रिमेंबर. हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोल रहे, बॉम्ब बोल रहा हूँ, बॉम्ब. अरे छोटा सॉरी का यार, बॉम्ब. मेरा नाक कान सब बंद हो रखा है बेटा. हाइड्रोजन बॉम्ब ऐसा ही बनता है, ऐसा बोल रहा है बेटा तू? यस. हाँ बेटा, यस, ऐसा ही बनता है. पता है क्या हो रहा है? सन पे ना 4 हाइड्रोजन एटम आपस में टकरा करके एक हीलियम एटम बनाते हैं, ठीक है. और ऐसे में क्या हो रहा है? 2 प्रोटॉन निकल जाते हैं. दिस इज, इससे ना बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रहा है. 1 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम to gain as much energy from 12,000 kilograms of hard coal. Can you imagine beta? Are you even comparing this? 1 gram of fusion between an isotope of hydrogen will give you energy equivalent to energy obtained from 12,000 kilograms of hard coal. अगर ये इतना आसान है तो हम लोग इसको वाइड स्केल पे यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत एनर्जी लगता है. बहुत एनर्जी लगता है. 2 न्यूक्लियस को आपस में ज्वाइन करके एक करना खाने का काम नहीं है. उसको बहुत ज्यादा हीट लगता है वो फेंस को तोड़ने के लिए, उस इंटरैक्शन को तोड़ने के लिए, उस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए. अंडरस्टैंडिंग बेटा? Yes. ठीक है. कोल इज अ इजियर वे ऑफ गेटिंग एनर्जी and fusion is a economical way of getting energy, but the problem is उसके अंदर इनपुट आउटपुट से ज्यादा लगता है. मतलब 1 ग्राम से एनर्जी निकालने के लिए ना मुझे इतना पैसा डालना पड़ जाएगा कि पूरा देश कंगाल हो जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट. सर अबंडेंस भी कम है ना? क्या बोल रही बेटा? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का अबंडेंस भी कम है. अबंडेंस भी कम है ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का. यस, एंड यू नो ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव, राइट? बिकॉज़ इट्स Traces में होता है. प्रोटॉन रेशियो. Yes. So scientists are trying to develop power plants from nuclear fusion, but possible नहीं है, इसलिए fusion use करते हैं अपन, ठीक है. So ये जो फेंस को तोड़ने का एनर्जी है वो कैसे मिलेगा? जब मैं एटॉमिक न्यूक्लियस या फिर एटम को बहुत ज्यादा स्पीड पे मूव करूंगा, और वो करने में मुझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर. बेटर प्रेशर, हायर हीट, ठीक है.
ultimately वो speed they are going to combine and give me one atom. ठीक है, but बाजू में देखो बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा हीट कंडीशंस ना, नॉट इजी। ठीक है, द सेम थिंग इज हैपनिंग इन सन। अब ये देख लो बेटा, सन का टेम्परेचर और प्रेशर एट सन 15 million degree Celsius and 200 million bar pressure. Do you think you will be able to survive this? No. No. Exactly. Do you think you will be able to generate this on Earth? No. Not possible. If you do this, पूरा Earth उड़ जाएगा, because इतना टेम्परेचर है सन का, तब इतने thousands of kilometers, lakhs of kilometers अपने से दूर है सन, तब जाके अपने को इतना गर्मी लगता है। सोचो अगर अपन इस पे होते, मर्क्यूरी या फिर वीनस पे होते तो क्या होता? सर हार्मफुल रेज भी निकलते हैं, यूवी रेज। हार्मफुल, बिल्कुल हार्मफुल रेज भी निकलेंगे, फ्यूजन हो रहा है ना बेटा, तो रेडियोएक्टिव रेज तो निकलेंगे निकलेंगे, Yes. है ना? अरे मम्मी। So in a fusion power plant you will need 150 million degree Celsius temperature because we have very low pressure as compared to sun. अर्थ के ऊपर उतना प्रेशर कम है, तो अगर आपको फ्यूजन पावर प्लांट बनाना है, अगर आपको फ्यूजन पावर प्लांट अर्थ पे बनाना है, you should be in a position to generate a temperature of 150 million degree Celsius. How many zeros in a million? Anybody knows? 6. 90 आएगा। What is 1 million? 1 million is 10 lakh. 10 lakhs. और ये क्या 60. बोल रहा है? 150 million. 60. तो आप समझ रहे हो इतना टेम्परेचर आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए फ्यूजन पावर प्लांट नहीं है, फिजन पावर प्लांट है। आज तक दुनिया में देयर इज नो फ्यूजन पावर प्लांट। ओके ओके गाइस, डू यू अंडरस्टैंड फ्यूजन एंड फ्यूजन क्लियरली? Yes. Did you guys Yes. understand what is Yes. fission and Yes. what is fusion clearly? Yes. यस यस। Okay, okay, fine. Now ये हो गया फिजन एंड फ्यूजन। अब बचता है अपने एप्लीकेशंस ऑफ ये रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो एक वीडियो है, I'll try to show that. मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं फिर भी ले लिया। हम लोग खुश हो गए होते, मैंने कैंसिल किया होता तो। दिख रहा है गाइस? क्या दिख रहा है आपको? शिकागो, Chicago. अमेरिका का एक। शिकागो। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा एक कार्टूनिक वे में देखेंगे हाउ न्यूक्लियर फिजन वर्क्स। ठीक है, शिकागो में वर्ल्ड वॉर 2 में साइंटिस्ट क्रैक्ड ओपन द न्यूक्लियस। ये सबसे पहला न्यूक्लियर फिजन कहाँ पे हुआ था? शिकागो में, दोपहर को, दिसंबर में। कभी? वर्ल्ड वॉर 2 में। वो लोग ने देखा कि मैं न्यूक्लियस अगर तोड़ेगा तो बहुत एनर्जी निकलेगा, तो ये न्यूक्लियस तोड़ के मैं जापान पे डालेगा, साला मैं सुपर पावर बन जाएगा। ओके, एंड टर्न इट्स न्यूक्लियर मास इनटू एनर्जी ओवर एंड ओवर अगेन, कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन किया था उसने। ठीक है, this nuclear reactor, this is how a nuclear reactor looks like. ठीक है, ये देखो। सो यहाँ पे दिखा रहा है ये कि अगर मैंने न्यूक्लियस तोड़ा तो आई विल बी, मतलब न्यूक्लियस तोड़ना मतलब क्या कर रहा हूं मैं? फिजन की फ्यूजन? Fusion. Fusion. कहाँ जाके Fission. मरू बेटा? Fission. मैंने क्या बोला? Fission. Fission ना होगा। समझाने के बाद आप बोल रहे हो न्यूक्लियस तोड़ना मतलब फ्यूजन। इट इज फिजन बेटा, ब्रेकिंग ऑफ द Fission. न्यूक्लियस इज फिजन। Both Tejas and Sharon said fusion. I'm so disappointed. सर मैंने नहीं बोला, मैंने फिजन। अरे भाई, मैंने तेजस और शारन बोला। मतलब मैं इतना बीमार होकर लेक्चर को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नहीं सुन रहे हो। मुझे बहुत दुख हुआ बेटा। अब मैं क्या करूं बताओ आप? शुड आई कंटिन्यू? Yes. ओके, तो ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस मींस फिजन। ओके,
ये क्या कर रहा है अभी, ये न्यूक्लियस, यूरेनियम का न्यूक्लियस तोड़ के उसमें से एनर्जी निकाल रहा है. It is a good source of electricity to power. So, ये देखो, this is the symbol of a nuclear reactor. ठीक है, तो हमने अगर न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी प्रोड्यूस किया तो this thing which you see which is running on the treadmill, it is a average household in the world. This household can be given energy for minimum 34 years. 34 साल के लिए एक घर को हम एनर्जी दे सकते हैं अगर हम लोग फिजन से जनरेट किया हुआ एनर्जी यूज करें तो. Now this, the problem is, instead of using it for energy purposes, our leaders and the people of the earth, they are using it for destructive purposes. इसलिए उसके ऊपर sanctions लग रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर ban लग रहे हैं. Does India have its own nuclear power plant? Yes sir, Yes, Tarapur में है Very good. atomic power plant. Does India has the capacity to attack any country Yes with sir, nuclear weapons? Yes. 120 nuclear bombs. Very good, very good. Are you proud of this or you sad of this? Both. No, you should be proud of it. Don't be sad, बेटा. अपना सेफ्टी अपने हाथ में ना, वरना पाकिस्तान तो कभी भी घुस जाएगा. Yes, yes. ठीक है. 1996 है ना, 18% यूज होता था ये. अब 2015 में आकर के ये 11% हो गया. क्यों ऐसा हुआ बेटा? कम क्यों हो गया बढ़ने की जगह? फुकुशिमा में नहीं बैन हुआ आ गया था. इसके ऊपर. Exactly, because उसका negative harmful effects आ रहा है. And it was expected to drop further. So what happened to this technology? Why are we not? So there are many hurdles. There are many construction costs. ठीक है? People are against it because उसके अंदर nuclear radiation निकल के लोगों को परेशान करते हैं. There are people dying. There is no enough place for living. Make a better place for you and for me and the entire human race. ये गाना सुना है आप लोग ने? Yes. इसमें वर्ल्ड वॉर और अफ्रीका के प्रॉब्लम्स को ये किया था. ये देखो. So there are many engineering challenges. So this fission of uranium nuclei in a controlled manner करेंगे ना, तब तो it is good. But again it is very costly. So uranium nucleus is densely packed with protons and neutrons, right? This is a uranium atom. Yes. This is a uranium atom. इसके अंदर कितना प्रोटॉन्स और कितना न्यूट्रॉन्स है? कितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है गाइस? सामने आंसर है, बोलो ना. 146. 146. 238 238 टोटल बोल रहा हूं मैं, टोटल. A combined of protons and neutrons is 238. Isn't it a huge number? Yes. Yes. Can you not break this nucleus into smaller and utilize its energy? Yes sir. इसके अंदर जितने भी ये सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, सबके सब काम नहीं आते, सबके सब एक्टिव नहीं होते. इसके अंदर से जब बॉम्बार्डिंग होगा ना, कुछ ही एक्टिव फ्री होके निकलेंगे जो आगे रिएक्शन को लेके जाएंगे. ठीक है, it's a nice video. I'll send you the link for this video. Okay, so what happened beta? Whenever an atom is struck by a neutron, it will split into two new atoms. Okay, अब ये जो एटम, दो एटम्स बना है, इसके अंदर से फ्री न्यूट्रॉन्स और निकलेगा. वो न्यूट्रॉन्स क्या करेगा? वो और दूसरे एटम्स को स्प्लिट करेगा. Yes. Okay, Yes. into lighter radioactive elements. ये देखो. ठीक है. So apart from this, न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं और दूसरे गामा रेज और दूसरे रेडिएशंस भी निकलते हैं इसमें से. ठीक है, तो वो एक हार्मफुल साइड इफेक्ट है ना. देखो ये क्या हुआ, न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया तो क्या हुआ, दो न्यूक्लियस बना, ये 3 आया. ठीक है, ये जो येलो छोटा वाला पार्ट था, ये क्या था बेटा? एनर्जी जो रिलीज हुआ. अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी कौन कैप्चर करता है? उस एटम के न्यूट्रॉन्स कैप्चर करते हैं. सब न्यूट्रॉन्स उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते, कुछ न्यूट्रॉन्स उसको एक्टिवेट कर लेंगे. ये न्यूट्रॉन ने एक्टिवेट कर लिया अपने आप को.
क्या करेगा, ये आगे जाके दूसरे को टकरा करके फिर से फिशन करेगा। देख में से और न्यूट्रॉन्स निकला और एनर्जी निकला, वो एनर्जी और किसी न्यूट्रॉन को एक्टिवेट करेगा जो आगे जाके किसी दूसरे एटम को तोड़ के 2 में करेगा। लाइक सी, ये धड़ धड़ धड़, like this. See, this is the chain reaction which is continuously happening. इस तरीके से टूटता जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? एग्जैक्टली। तो अभी ये अगर कंट्रोल नहीं किया तो इनकी शक्लें देख रहे हो बेटा कितने शैतानी लग रही है। yes. इनको कंट्रोल किया जाता है। So we will use elements which capture excess neutrons and keep it in control. ठीक है? So with this controlled chain reaction, we can develop energy from a nuclear power plant. Okay, and it can be kept stable for years. अभी देखो, so ये जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना, they have too much kinetic energy. ठीक है, ये जो फिजन की वजह से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, they have too much kinetic energy. And what's happening is, so kinetic energy वो लोग टकरा नहीं पाते क्योंकि कोई चीज बहुत स्पीड में निकल रही है तो वो खाली रास्ता देख के निकल जाती है, प्लस उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो वो डिफ्लेक्ट भी नहीं होता, राइट? तो वो न्यूट्रॉन्स को स्लो करना पड़ेगा अपने को। स्लो क्यों करना पड़ेगा? ताकि वो रिस्पेक्टिव एटम या न्यूक्लियस से टकराए। अगर वो टकराएगा नहीं तो न्यूक्लियर फिजन कहां से होगा बेटा, राइट? Yes. These neutrons are very fast. तो इनको ना heavy water, I don't know whether you have heard of this, D2O यूज करते हैं, heavy water यूज करते हैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस से टकराए और फिजन रिएक्शन होने दे। ये देखो, rods are used as moderators to control the speed and the number of neutrons produced during a nuclear fission reaction. ठीक है, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे था? शिकागो में। ये देखो, इसको स्लो किया, उसको डाइवर्ट किया एटम की तरफ डाइवर्ट किया, ये क्या हुआ? कोइंसाइड हुआ और वो क्या हुआ? फिजन हुआ, है ना? देखा आप लोगों ने क्या हुआ? Yes. Yes. मम्मी ये देखो, इस तरीके से ये इसको कंट्रोल करता है। जनरली प्यूरिफाइड वाटर इज आल्सो यूज्ड एज मॉडरेटर, ठीक है, टू कंट्रोल द स्पीड एंड टू कीप अप द चेन रिएक्शन। ये देखो, ठीक है। अभी बहुत अलग अलग चीजें भी यूज करते हैं, गैसियस यूरेनियम कंपाउंड्स एंड ऑल, अलग अलग चीजें हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज इन एक्सेस। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आप समझ गए ना न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो क्या रहा है? ठीक है। सो दिस व्हाट इज हैपनिंग, तो पूरा फंक्शनिंग है अच्छे से, अपन कर सकते हैं उसको। थोड़े और एप्लीकेशंस हैं जो अपन देखेंगे, ठीक है गाइस? I think we are good enough for today. I need rest. Yeah, I need to go to the doctor also. Okay, guys. I hope you understood whatever we discussed today: fission, fusion, nuclear reactors, and